Good morning, folks. We are back again with the Guru Mantra series today, third of its kind, and each time with the promise that we come with something different for you all. Today, we are going to be enlightened by a Guru who comes with immense wisdom, and his forte is something which is going to be very close to our hearts, our own country. As usual, I'll invoke a shloka to start this auspicious meeting. Today, I'm going to narrate something which I have been saying all through my life because this was taught by my own father to me. And it is believed by chanting this shloka, which is dedicated to Lord Jupiter, one learns to accumulate wisdom all throughout his life, which means the learning point never ends. It is there till your last breath. So I'm going to say this mantra to you. Devanancha Rishi Nancha Guru Kanchan Sannibham Buddhi Bhutam Trilokesham Tam Namami Brihaspatim. If I have to tell you in short what it means, I bow down to the Lord Brihaspati, who is the ruling deity of planet Jupiter. He is the preceptor of all gods and sages. Shining in the golden glow, he is the embodiment of wisdom. He controls the three worlds. Finally, he is like the Mahaguru for everybody. So on this background, I would like to welcome Padma Shri Sammanit Dr. Rajnikant to this Guru Mantra series today run by the HPMF Forum. Good morning, sir. Dr. Saab, welcome. Okay, I will give you a very short introduction about Dr. Saab, and as we get into a good chat with him, you will discover the various sides to this young gentleman out here, and you will be surprised that a person decides to achieve something, he can really go that extra mile and do a lot for himself or his country. To start with, Dr. Rajnikant is the Executive Director of Human Welfare Association. And under that, what projects he has done? We will do that when we ask him more questions about that. Just a small trivia, he was born on 5th August 1960. Please do not calculate his age. His wisdom goes much beyond his age, let me tell you that. He has played a vital role for protection and promotion of traditional crafts through GI registration process. Now, this is something which is going to be a very interesting thing that you all are going to come to know when we talk and explore what all he has done and what all is in the pipeline. He has also done and attended a lot of international summits, all for his own country, so that we could give a fresher perspective to the challenges the country faces from time to time. There are many pet projects that are very, very passionate, that he's very passionate about, and very soon we are going to discover all that. But before we get into all the technical details and all that he has contributed to our motherland, we would like to know what Dr. Rajnikant was as a baby. Obviously, all the foundations are laid in the childhood stages. A person of his stature reaches that stature only when he has been grounded and groomed right from his childhood days. Right, Dr. Sam? जी. So we would like to know आपके बचपन के बारे में, आपके ऊपर आपके माता पिता का जो इन्फ्लुएंस रहा है, आप जिस गांव में पले बड़े थे वहां का इन्फ्लुएंस. We would like to know about this क्योंकि ये जब बैकग्राउंड जब तय हो जाएगा तो it will become easier for people to connect to the questions that I will ask you. Over to you, sir. नहीं, ठीक है. और बचपन हम बताएं कि जो विंध्य पर्वतमाला है और विंध्य पर्वतमाला से नीचे गंगा जी मिर्जापुर जनपद से बहती हैं वहां से, और वहां से काशी आती हैं. तो गंगा जी के किनारे चुनार एक ऐतिहासिक जगह है, उसके बगल में हमारा गांव है जलालपुर माफी. तो माफी जलालपुर हमारा जन्म हुआ है, और हमारी ननिहाल एकदम विंध्य पर्वतमाला के ठीक नीचे शेरवा नाम का एक गांव है, और जिसका उल्लेख महाभारत काल में भी किया गया है, तो वो हमारा ननिहाल है. तो हमारा बचपन हमारे गांव और हमारे ननिहाल के बीच में वो परवरिश हुई हमारी. तो इसलिए ननिहाल पक्ष का भी पूरा प्रभाव हमारे ऊपर में रहा हमारे जीवन काल में, और अभी भी है. और हमारे बाबा का, हमारे पिताजी का, माता का, सबका आशीर्वाद जो है रहा है. और बचपन में ही पिताजी मिर्जापुर से गोरखपुर चले गए. वहां पे उन्होंने एक डिग्री कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया वहां पे, और वहां पे हमारा पूरा बचपन फिर गोरखपुर में बीता. और वो सरयू नदी के तट पे है. वो गोरखपुर में बढ़लगंज एक जगह है जो सरयू नदी के तट पे है, और भगवान श्री राम ने उसी मार्ग से यात्रा की है जब उनका वनगमन हो रहा था. तो सरयू नदी के तट पे बढ़लगंज है, और वहां पे हमारे पूरा बचपन से लेके युवा तक हमने ग्रेजुएशन तक वहां किया.
और पिताजी पहले शिक्षक रहे, अध्यापक रहे, बाद में फिर उस कॉलेज के प्रिंसिपल हुए और 37 साल के कार्यकाल में वो 27 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। ओह वाओ! तो हमारा वो पूरा बचपन वहां पे बीता गोरखपुर में और अपने दोस्तों के साथ में सरयू नदी के किनारे। तो ये कड़ी रही है पूरी की विंध्य श्रृंखला से गंगा जी से लेकर और सरयू नदी के तट तक ये सारा रहा है, वृतांत रहा है। और चूंकि अध्यापक का पुत्र होने के नाते जो बचपन से ही सारी चीजें जो थी, जो शिष्टाचार है, संस्कार है, अनुशासन है, तो वो सारा हमने बचपन में सीखा पिताजी को देख करके। वो हमारे गुरु, हमारे पिता रहे। मुझे लगा ही था हमारे गुरु, मुझे लगा ही था ऐसा ही इन्फ्लुएंस कुछ रहेगा। एंड इट इज सो नाइस। मतलब मुझे ये सोच के ऐसा लग रहा है कि पूरा आपका जो नींव, जो फाउंडेशन जो रखी गई है बचपन से, उसी तरीके से आपकी जो प्रोग्रेस आगे हुई है, इट इज सो एविडेंट कि कोई एक हाथ गुरु का रहा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपने जाके मतलब आपने जो आपका ग्रेजुएशन हो सॉइल एंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड सॉइल केमिस्ट्री, सॉरी, एंड प्लस आपने आपकी डॉक्टरेट भी आपने गंगा मैया पे की है। मतलब दैट शोज अ लॉट दैट आपका अपब्रिंगिंग, आप जहाँ पले बड़े हो, आपने उसी पे जाके आगे आपने जो शिक्षा ली है, आपका पैशन रहा है। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। हाँ, एक्चुअली बड़हलगंज से जब हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर हम कानपुर चले आए और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में हमने वहां से फिर मास्टर डिग्री किया सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, और हम वहां से बीएचयू चले आए पीएचडी करने के लिए। तो 2 साल का समय चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में था, शायद उस नाम का भी असर हमारे ऊपर में थोड़ा सा हुआ। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आने के बाद में डॉक्टरेट के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे जो छात्र आंदोलन था उससे भी जुड़े रहे, लेकिन जो प्राथमिकता थी जो अपना काम करना, वो हमने गंगा वाटर पोल्यूशन के ऊपर में वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर के हमने काम किया और वीट और पैडी की क्रॉप पे अपनी डॉक्टरेट हमने किया। और उस समय भी ये भाव था कि हम जो इरिगेशन के लिए जो जनरल वाटर को यूज करते हैं, अगर हम उसकी जगह पे सीवेज के ट्रीटेड पानी को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर बचेगा और किसान को दुगना फायदा होगा उसका। तो ये हमने डॉक्टरेट किया और वहीं 5 साल हमने काम किया। लेकिन 1991 में ही और कुछ इस तरह की चीजें ग्रामीण परिवेश में हमको झकझोर करके रखी और फिर वहीं से हम शिफ्ट कर गए और महामना मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम करके, और महामना को हम 93 में पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय से और समाज सेवा के वाटर पोल्यूशन से हम सोशल पोल्यूशन को दूर करने के क्षेत्र में हम शिफ्ट कर गए और फिर उसी क्षेत्र से हमने काम किया जहां से हमने रिसर्च का काम अपना शुरू किया था। सर मुझे एक बात बताइए, हम पूरी जिंदगी भी काट लेते हैं, हम अपनी मैया पे पीएचडी नहीं कर पाते। आपने गंगा मैया पे पीएचडी किया एंड आपको पक्का चैलेंजेस इसमें आया होगा। ये विषय कठिन लग रहा है मेरे को, मतलब मेरे समझ के परे है। तो आप क्या बता सकते हैं आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने इन चैलेंजेस के ऊपर मात कैसे की? असल में वह जो समय था, उस समय बड़े पैमाने पर जो सीवेज के पानी थे वो गंगा जी में जाते थे, सारी चीजें होती थी, पोल्यूशन होता था। तो ये लगा कि हम जब तक सीवेज को उसमें जाने से रोकेंगे नहीं, तब तक उसका कोई तरीका नहीं है, और अगर हम रोकेंगे तो उसका करेंगे क्या? उस पानी का जो सीवेज है, जो स्लज है, हम उसका करेंगे क्या? तो उस समय फिर ये विचार हमारे मन में आया। क्योंकि मैं कृषि का विद्यार्थी रहा, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा, तो हमारे मन में बार बार था कि हम इस पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल अगर करेंगे ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद, तो वो काम हमने फिर शुरू किया। और जो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हुई दीनापुर गांव में, तो उसी जगह से ट्रीटेड पानी को लेके हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और वहीं से किसानों के बीच में हमने उस पूरे कैंपेन को चलाया कि अगर हम ट्रीटेड सीवेज के पानी को इस्तेमाल करते हैं तो जमीन का जो ग्राउंड वाटर है ड्रिंकिंग का, वो बचेगा और सीवेज के पानी से प्रोडक्टिविटी बचेगी, बढ़ेगी और किसान को फायदा होगा। तो एक मोटिवेशन वही था। और ये पूरा का पूरा स्वाभाविक सी बात थी कि चैलेंज ये थे कि उसमें सरकारी सुविधाएं नहीं थी, उसमें व्यवस्थाएं नहीं थी, उसमें कुछ वो कोई बात भी नहीं करता था उसके बारे में। लोगों को हंसी आती थी कि ये सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उसके इरिगेशन की बात कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए विश्वविद्यालय में। लेकिन जब दूसरे क्षेत्र में चले आए तो हमने उसी पूरी की पूरी चीज को, इन्वायरमेंटल हैजार्ड कैसे दूर होगा,
सोशल पोल्यूशन कैसे दूर होगा, वाटर पोल्यूशन से लिंक कैसे होगा, फार्मर्स की लाइवलीहुड कैसे बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, हम उस पूरे विषय पे फिर जो है अपने को फिर हमने शिफ्ट किया काम करने के लिए। तो क्या ये सेम मॉडल कोई और गांव में भी अडॉप्ट किया गया, जो आपने वहां पे जो ये रिसर्च कराया, ऐसे कितने सारे गांवों ने इसे अडॉप्ट कर लिया बाद में? आज की तारीख में वाराणसी में काफी बड़ी संख्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हुए और वर्तमान सरकार ने तो उसमें बहुत ही तेजी लाया है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने में, और बहुत बड़े पैमाने पे सीवेज का डाइवर्जन हो रहा है, वो गंगा जी में नहीं जा रहा है, तो पोल्यूशन वहां से दूर हो रहा है और किसान बहुत बड़े पैमाने पे उन जल का उपयोग कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। वेरी गुड सर, ये बहुत ही एनलाइटनिंग था हमारे लिए सोचने के लिए कि अगर ठान लिया है कि कुछ करना ही है, तो कोई भी चैलेंजेस क्यों ना है, कोई भी दिक्कतें क्यों ना है, हमें आगे बढ़ना है, फोकस रखना है और इस चीज को करना है। आपके दिमाग में ये था कि अगर ये प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हो जाए तो ये यू कैन स्प्रेड इट अराउंड टू मेनी मोर विलेजेस एंड दे विल ऑल बेनिफिट। आई एम हैप्पी कि इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ना कि आपने ये सिर्फ डॉक्टरेट के लिए किया, वो पदवी के लिए, पर आपको ये था कि उसमें से किसी को कुछ फायदा हो, अपनी कंट्री को कुछ फायदा हो। सो दिस इज वन, मेरे हिसाब से इट्स अ गुरु मंत्र कि जब भी आप कुछ करो तो सिर्फ केवल अपना विचार ना करते हुए सारे लोगों को जो बेनिफिट हो इसमें से, इस तरीके से कुछ काम करो कि यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द बेनिफिट्स फॉर लॉट ऑफ पीपल। एम आई राइट डॉक्टर साहब? जी, हम बड़ा स्पष्ट है कि हमने अगर कोई पीएचडी किया, हमने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया, लेकिन आम व्यक्ति के जीवन में अगर उससे बदलाव नहीं आया, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिला, तो वो हमारा करने का कोई फायदा नहीं है। उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है जिस रिसर्च से उस व्यक्ति के जीवन में, उन लोगों के जीवन में, उस समाज के जीवन में अगर बदलाव नहीं आया है, उसका कोई औचित्य नहीं है करने का। तो हमारा भी ये औचित्य था कि हम किसानों के जीवन में बदलाव की बात कर सके, भूमिहीन महिलाओं के जीवन में बदलाव की बात कर सके, महाजन के चंगुल में फंसी महिलाओं के जीवन में बदलाव कर सके। तो वो एक प्रयास था कि छोटी जोत के किसान हैं, कम जमीनें हैं, तो उत्पादकता कैसे बढ़ेगी। तो ये जीवन में बदलाव आया और हमें लग रहा है कि शायद वो हमारा डॉक्टरेट करना और वहाँ रिसर्च का काम करना वो सार्थक रहा और उस पर ढेर सारे फिर एग्जाम्पल क्रिएट किए गए। बहुत लोगों ने पीएचडी भी किया फिर उसके बाद में जो है अलग अलग उसी को लेकर के। इसी से जुड़े मैं अब 2 सवाल आपको पूछूंगी विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड व्हाट बेटर देन अ लेडी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। अंडर द ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन में आपने 2 कार्य किए हैं जो बहुत ही उम्दा है एंड इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर एनी मेन इन दिस कंट्री राइट नाउ। तो सबसे पहले हम वो बात करेंगे जो लैंडलेस विमेन के लिए, उनको रिस्पेक्ट से जीने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए आपने कुछ एक प्रोजेक्ट किया था। क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? जी, देखिए, हम चूंकि ग्रामीण परिवेश में पैदा हुए थे और वो पूरा जीवन हमारा एक तरह से युवावस्था तक मतलब ग्रामीण ही समाज में एक तरह से बीता था, तो गांव के अंदर में महाजन से ऋण लेकर के, लोन लेकर के, क्रेडिट लेकर के छोटे छोटे अमाउंट को, और वो एक बड़ा मतलब लंबे समय तक उनके क्लच में फंसे रह जाते थे। तो जब हम रिसर्च का काम कर रहे थे तो एक महिला ने हमसे एक सवाल किया था कि हमने 200 रुपया ऋण लिया है और एक साल में हमने 220 रुपया उसका इंटरेस्ट दे दिया, अब प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, तो ये पोल्यूशन है कि नहीं है? तो हम उस दिन तो उसकी बात का जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन हमने 1991-92 से उसी उस काम को हमने जब करना शुरू किया सेम एलए से, तो उसी गांव में हमने उसको कहा था कि ये पोल्यूशन है, ये सोशल पोल्यूशन है, और महिलाओं का सेविंग एंड क्रेडिट का ग्रुप बना के, बचत और ऋण का छोटा सा समूह बना करके, और हमने वो एक अभियान शुरू किया और लगभग 700 से अधिक महिलाओं को महाजन के चंगुल से मुक्त कराया। बाद में 94-95 में ये स्वयं सहायता समूह शब्द आया, नाबार्ड का दिया हुआ शब्द है स्वयं सहायता समूह, और जो कि भारत में बहुत प्रचलित हुआ, और आज की तारीख में तो भारत सरकार का जो पायलट प्रोग्राम है ये उसमें शामिल है। लेकिन 91-92 में ही हमने सेविंग एंड क्रेडिट ग्रुप की शुरुआत कर दी थी, और आज की तारीख में भी लगभग 4,500 से महिलाएं अधिक भूमिहीन, क्योंकि वो महिलाएं उनकी जमीन नहीं उनके पास में, तो वो उसी महाजन से, गांव के महाजन जमीन को पट्टे पे लेती हैं, लीज पे लेती हैं, हायरिंग बेसिस पे लेती हैं, और उसमें अब चूंकि जमीन छोटी है
और उन्होंने 1 साल के लिए उसको लिया हुआ है, तो हम उनको ट्रेंड करते हैं वेजिटेबल के लिए, फ्लावर कल्टीवेशन के लिए, फ्रूट कल्टीवेशन के लिए, दूसरे लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस के लिए उनको ट्रेंड किया हमने। और आज की तारीख में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का उस समय सेविंग एंड क्रेडिट का काम 200 रुपए से शुरू हुआ था, आज 9.5 करोड़ रुपए से अधिक की वो महिलाएं वो मालिक हैं। 9.5 इज मोर देन। तो ये आत्मनिर्भरता की नींव तो आपने ही तो प्ले की है, मतलब इतने पहले से ये आत्मनिर्भर इनको बना डाला आपने। वो हो गई वो एग्जैक्टली। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान की आयु को दुगना करना है, और हमारे यहाँ महिलाएं अपनी आय को दुगने से काफी अधिक कर चुकी हैं पहले से। तो हम लोग उस कैंपेन को और स्प्रेड कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये योगदान है, और यही कारण है कि हमारे साथ में जो जमीन पे जुड़ी महिलाएं हैं, हमसे पहले उनको सम्मान मिल चुका है। 2 मुख्यमंत्रियों से उनको सम्मान मिला, 1-1 लाख रुपए के उनको पुरस्कार मिले हैं। तो वो लोग ही प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे, वो महिलाएं हमारी प्रेरणा की स्रोत हैं। वो महिलाएं, भूमिहीन महिलाएं, लैंडलेस वीमेन आर नाउ empowered, they are independent. Even in the COVID period also, they did not go bank for the 500 rupees. They have their own corpus, 2 lakh rupees, 2.5 lakh rupees, 3 lakh rupees, 4 lakh rupees in the group. And they are using their own money. Superb. मतलब आपने जो उनको एक राह दिखाई, जैसे गुरु जिसको राह दिखाते हैं डार्कनेस में से एनलाइटमेंट की तरह, तो आपने गुरु की तरह उनको जो राह दिखाई है, और राह पे वो अच्छा चल रहे हैं। अभी ये सारी महिलाओं ने अपने लिए इतना अच्छा किया जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जब एक महिला लैंडलेस हो जाती है तो उसको लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी माइक्रोफाइनेंस नहीं है, ये उनका माइक्रोफाइनेंस कंपनी नहीं है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। यस, तो उसमें ज्यादा रिस्पेक्ट भी है, और उसमें जो एक तरीके का एक जो लाइफ में इंस्पिरेशन आता है, हो सकता है एक महिला ने दूसरे महिला को इंस्पायर किया हो, उसने तीसरे को, जैसे आपने यू स्टार्टेड द फ्लेम, तो आगे आगे ये जो वाइल्ड फायर सेल्फ हेल्प की जो स्प्रेड हुई है, जो इतने नंबर्स एंड लैक्स में महिलाएं अभी आत्मनिर्भर हो चुकी है, और इसका श्रेय तो आप ही को जाता है सर। इसी से निगड़ित और एक सवाल है जो आपको एकदम ही क्लोज टू योर हार्ट है। एज अ चाइल्ड, every child has the right to educate them, especially the girl child. तो उसके बारे में आपने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, इन्हीं महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, इन्हीं के बच्चियों को जो पढ़ लिख नहीं सक रहे थे, काफी बड़ी हो गए थे उम्र में, लेकिन यू वर पैशनेट कि इनको एजुकेशन देना चाहिए, तो आपने कुछ एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसकी एक नींव रखी, जो आज बड़े बड़े पैमाने पे आज वो हो रहा है। क्या उसके बारे में हम बात कर सकते हैं अभी? जी, एकदम बात कर सकते हैं। उसमें देखिए क्या हुआ कि जब हम महिलाओं के बीच में जब हमने वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें हम देखते थे कि लड़कियां गांव में वो स्कूल नहीं भेजते थे। लड़कों को तो जैसे प्राइमरी स्कूल में भेज भी दिया, वो भी बहुत लड़कों को नहीं भेजते थे, लेकिन लड़कियां लगभग नहीं जाती थी। तो हमको बार बार ये लगता था कि ये आने वाले समय में ये कहीं चाइल्ड लेबर ना हो जाए, कहीं उसमें क्लच में न चले जाए किसी तरह से। और उनको पढ़ाने का जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, उसमें जो 54 जो चाइल्ड राइट्स है, उसमें एजुकेशन का राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चे का सबसे बड़ा राइट जो शिक्षा है उसका। तो हमने फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन का प्रोग्राम हमने शुरू किया, और वो गांव में, मड़ई में, झोपड़ी में, हट में, बारांडे में, पेड़ के नीचे, उन्हीं का गांव के बीच में, और यंग लड़कियों को, बहुओं को विशेष करके लेकर के, जो 5 पास थी, 8 पास थी, उनको लेकर के हमने शुरुआत किया लड़कियों को पढ़ाई करने का। बाद में लोगों ने कहा कि साहब लड़कों को भी पढ़वाइए, तो लड़के भी आए उसमें। और हम लोगों ने पैरेलल एजुकेशन सिस्टम नहीं खड़ा किया, हर 2 साल 3 साल पे जो नजदीक के स्कूल होते थे, हम लोग वहां पे उसको मेन स्ट्रीम कराते थे। तो ये कैंपेन पूरा स्टार्ट हुआ एजुकेशन का, और ये एजुकेशन का कैंपेन बढ़ते बढ़ते लगभग 63 स्कूल्स और मदरसे भी, वो कहने में कोई संकोच नहीं है कि मदरसे भी खड़े हुए, क्योंकि उस समय मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम होती थी, रिलीजियस तालीम होती थी। तो जो मदरसे भी खड़े हुए, उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो गवर्नमेंट का कैरिकुलम था, वहां भी पढ़ाई की बात शुरू हुई जो है। और लगभग 1,25,000 चिल्ड्रन 1,25,000 चिल्ड्रन एजुकेशन की मेन स्ट्रीम हुए, जिसमें नियरली 32 से 35,000 तक तो सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हैं। ओह वाओ,
तो ये एक कोशिश हुई कि झोपड़ी के नीचे पढ़ने वाली लड़की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उसने डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया जो है, तो ये हम लोगों को लगा कि ये, क्योंकि देखिए प्रतिभाएं गांव में बहुत हैं, हमको उन प्रतिभाओं को निकालना है। जो एक संस्था होती है, एक व्यक्ति होता है, वो मोटिवेटर है, फैसिलिटेटर है, तो हमने मुख्य धारा से जोड़ा। और जब देश में राइट टू एजुकेशन का एक्ट आ गया, कानून आ गया, तो फिर हम लोगों ने उस एनएफई सेंटर्स के कॉन्सेप्ट को रोका और कहा कि नहीं, अब शिक्षा का कानून आ चुका है 2009 में, अब सारे लोग शिक्षा की मुख्य धारा से उस राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत में जुड़ेंगे। और भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पे इसमें सरकार के भी माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल किया। तो एक शिक्षा का भी अभियान था जिसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो सारे स्कूल और मदरसे आज भी चल रहे हैं। अच्छी बात, और मैं कहीं मेंबर नहीं हूँ उसमें, मैं किसी भी स्कूल या उसमें मैं सदस्य नहीं हूँ। सर, आपको मेंबर होने की जरूरत नहीं, आप नींव डाल रहे हो और बस वहां पे ऊपर फाउंडेशन आप जो पक्का करके दे रहे हो, उसी पे सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एंड बिलीव मी, जो नींव डालने वाला होता है वो इंसान, हर एक इंसान वो नींव डालने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तो आप जैसे लोग हैं, जो हम बोलते हैं कि वो टॉर्च लेके, टॉर्च बेरर्स जो हम बोलते हैं, वो अगर आप जैसे लोग टॉर्च बेरर्स नहीं होते तो ये सारे प्रोजेक्ट्स चालू ही नहीं होते। एंड बिलीव मी, जहाँ पे एक्चुअली वो हमारे पिताजी की हमने देखा था कि मिर्जापुर से गोरखपुर जाकर के एक विद्यालय की स्थापना का, उसको कॉलेज बनाना, और रिटायर्ड होने के बाद सब कुछ छोड़ के काशी चले आए। पिताजी हमारे सब कुछ छोड़ के वहां से काशी चले आए और बोले नहीं, हमको तो जहां हमने काम किया वहां नहीं, हमको काशी में रहना है। और मालवीय जी हमारे प्रेरणा के स्रोत थे और हमारे पिताजी हमारे प्रेरणा के स्रोत थे। तो इसलिए वो तो मन में विचार नहीं था, जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं समाज का काम होना चाहिए। बराबर है, बराबर है। अभी इसी से जुड़ा हुआ और एक सवाल मैं पूछूंगी, मे बी नॉट दिस, बट आप वाराणसी से आपका जो लगाव रहा है, वहाँ के आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ की भूमि, वो भूमि में से निकलने वाली चीजें, यू नो, इट कैन बी हैंडीक्राफ्ट, इट कैन बी ग्रेन्स, एग्रीकल्चर, व्हाटएवर, आपके लिए इट हैज बीन वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड आपको वो जतन करना था कि ये मेरी भूमि से निकली हुई चीज है, इसको एक आइडेंटिटी मुझे देनी है। उसके ऊपर आपने कुछ काम किया जीआई इंडेक्स का, कि पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में इसकी आइडेंटिटी जुड़ी रहे मेरी मातृभूमि से। तो हम इसके बारे में अभी एलैबोरेटली सुनना चाहेंगे, क्योंकि इसी से जुड़े हैं। आपकी जो पदवी मिली है, उस जर्नी तक भी हम जाएंगे। पर पहले मैं जानना चाह रही हूँ, वाराणसी में ऐसा क्या है जो आपको इतना लगाव है उस भूमि से? मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट whether it is food, whether it is the Banarasi silk, anything and everything related to your Janmabhoomi and Karmabhoomi also to an extent. So can you talk about that GI index project? कहाँ से इंस्पिरेशन हुआ आपको, आपने क्यों किया और इतना मतलब बढ़िया काम किया, you know, like आप, मैं I'll come, the next question is right in my mind, पर आप जब ये GI इंडेक्स की बात पूरी करेंगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगी। बताइए सर। देखिए, एक तो जब हम काशी की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन रहने वाला शहर है, ओल्डेस्ट लिविंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इजिप्ट में, मिस्र में पिरामिड हो गए, लोग पिरामिड देखने जाते हैं, और काशी में गंगा नदी के तट पे गमछा लगा करके बिलियनर बैठा है कि बेकर बैठा है ये मालूम नहीं है, वो गंगा जी के तट पे। ये काशी है जिसको कहा गया काश्याम मरणाम मुक्ति, और दूसरा कहा गया यत मंगलम सर्वत्र, कि सभी जगह यहाँ पे मंगल है और यहाँ पे मरने से मुक्ति मिलती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में आध्यात्म का, संस्कृति का, धर्म का और राष्ट्र का, जो राष्ट्र के प्रति प्रेरणा की बात है, उसका अगर पूरा केंद्र कहीं है तो वो काशी है। और जब हम काशी कहते हैं, जहाँ पे साक्षात भगवान शिव ने वेद को वो श्रुति के रूप में परिवर्तित किया, मृदंग के ऊपर में उन्होंने बजा करके वेद की ऋचाओं को उन्होंने श्रुति में कन्वर्ट किया और वो श्लोक में परिवर्तित हुआ है, तो ये काशी है। और इसका महात्मा मतलब हजारों हजार साल से जब से पृथ्वी है उस समय से है। लोग कहते हैं कि ये शिव के द्वारा बसाया हुआ शहर है, ये नगर है शिव के द्वारा बसाया हुआ, जो पार्वती जी के लिए बसाया गया था। अब ये जो भारत भूमि का ये हिस्सा है, वैसे तो पूरी भारत भूमि जिसकी सांस्कृतिक विरासत, सब प्रभुता और जो विचार हैं, वो पूरी दुनिया को प्रेरणा का स्रोत हमेशा देते हैं ना, अनादिकाल से। हम चाहे चाणक्य के रिजीम से भी अगर उसका उल्लेख करते हैं
तो चाहे तक्षशिला है, नालंदा है, काशी है, जितने बड़े गुरुकुल रहे हैं, तो समृद्ध भारत भूमि की जो विरासत है, जिसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें वाराणसी का, काशी का बहुत बड़ा स्थान है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे उत्कृष्ट हथकरघे की बिनाई होती है, वस्त्र तैयार होते हैं। यहाँ पे 18 से 20 तरह के हस्तशिल्प हैं एक शहर में। एक शहर के अंदर में 18 से 20 हस्तशिल्प है, और फैब्रिक का कम से कम 200 से 300 वैरायटी अलग अलग तरह के फैब्रिक यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये अद्भुत शहर है जो रोम के पोप के ड्रेस को बनाता है, जो परम पावन दलाई लामा के ड्रेस को बनाता है, जो भगवान बुद्ध के वस्त्र को बनाता था। तो ये काशी है। और इसलिए एक बड़ा लगा, हमको ये लगा था उस समय कि जब हम यहाँ पे आए, जब हमारी कर्मभूमि बनी, तो धीरे धीरे गिरावट हो रही थी। WTO के एग्रीमेंट के साइन के बाद में जो विश्व भर से अतिक्रमण होना शुरू हुआ व्यापार के ऊपर में, और जो मशीनें आनी शुरू हो गई बड़े पैमाने पे, तो जो हाथ का हुनर था, जो ह्यूमन स्किल थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। बाजार में नकली सामान आने लगे। तो हमें एक चिंता ये हुई कि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हजारों साल की विरासत है, जो समृद्ध भारत है, ये बचेगा कैसे? ये इनके चाहे देखिए, वो सिर्फ शिल्प नहीं है, वो कृषि के उत्पाद हैं, वो फल है, वो मसाले हैं, वो चाहे केरल के हों, महाराष्ट्र की कृषि भूमि है, संतों की अपनी भूमि है, लेकिन वो कृषि भूमि भी बहुत बड़े पैमाने पे है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर के, और काशी भी उसमें समाहित है। तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से कच्छ तक की हम जब बात करते हैं, तो सारे जगहों पे विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं। तो WTO के एग्रीमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की गई है, जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक शब्द आता है, GI। और ये GI इज ए कम्युनिटी प्रॉपर्टी। GI किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। बनारसी साड़ी समुदाय की संपत्ति है, पैठनी साड़ी महाराष्ट्र के वहां के लोगों की संपत्ति है, अल्फांसो मैंगो रत्नागिरी के लोगों का उत्पाद है, दार्जिलिंग की चाय वहां के लोगों का उत्पाद है। तो सारे जगह की जो विरासत है, जो समृद्धि है, जब हम बोलते हैं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इसी विरासत है, वो उसी का पाठ था और उसी ने हमको प्रेरित किया कि हम GI के ऊपर में काम करना शुरू करें। एंड आपने प्रेरणा ली, और उसकी वजह से आपने जितना काम GI इंडेक्स के तौर पे किया है, आपको उसी चीज के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए HPMM फोरम के लिए भी बहुत ही गौरवशाली बात है, क्योंकि आई थिंक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जितने भी फोरम्स है, उसमें आप जो एडवाइजरी बोर्ड पे हो, तो टू हैव अ पद्मश्री ऑन विद अस सम्मानित जो है, इट इज हमारे लिए गर्व की बात है। सर, अभी टाइम बहुत ही कम बचा है। मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपको करना है बिफोर वी क्लोज डाउन राइट नाउ, कि अभी जो चालू है कोविड सिचुएशन, ओके, आफ्टर दैट हाउ इज द प्रोक्योरमेंट इंडस्ट्री गोइंग टू कम अप, एंड आत्मनिर्भरता को इससे अगर हम जोड़े, तो हाउ कैन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लुक एट प्रोक्योरमेंट विद इन आवर ओन कंट्री? देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का तो देश की आत्मनिर्भरता से बहुत बड़ा सीधा का सीधा संबंध है। और हम तो HPMF को पहले धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे जैसे व्यक्ति को अपनी एडवाइजरी में रखा है। हम HPMF की टीम के आभारी हैं। लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाकई में इस समृद्ध भारत की विरासत में बहुत बड़ा योगदान कर रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो बाहर से आने वाला जो व्यक्ति है या घर के अंदर का व्यक्ति जो उस होटल की इंडस्ट्री में जाता है, हॉस्पिटैलिटी में जाता है, तो वो देवता है, भगवान है उसके लिए। और सेवा का भाव है वो यहीं की विरासत से जुड़ा हुआ है। सारी जगह की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की विशेषता होती है। तो जो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग चीजें हैं, वो उसके साथ में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जुड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बराबर कर दिया, उन्होंने इक्वल कर दिया। तो ये बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री अब हॉस्पिटैलिटी की भी MSME में आ गई। तो MSME इंडस्ट्री का जितना बेनिफिट होगा वो सारा का सारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिलेगा। और यही तो देश की विरासत को अलग अलग होटलों में, अलग अलग जो रिसोर्ट्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम में आप भारत की जो चीज को प्रदर्शित करते हैं, आप भारत की चीज को सर्व करते हैं, भारत की विविधता को दिखाते हैं, उनको बताते हैं। और यही आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है कि हम अपने देश की चीजों को पूरी दुनिया के सामने
हम दिखाने का, परोसने का, सेवा का काम करेंगे, तो हमें लगता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा स्टेक इसमें है। और आने वाले समय में यह देश की समृद्ध विरासत के लिए पूरी दुनिया में पहुंचाने का, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल, फॉर ग्लोबल, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस मेक इन इंडिया को अपने सेक्टर से पूरी दुनिया में पहुंचाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में यही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की देन होगी कि वो भारत को फिर से सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने में पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। इसी से मुझे एक सवाल पूछना है कि अभी जो युवा पीढ़ी आ रही है, उन्होंने ये विटनेस किया है लॉकडाउन, कोविड, हो सकता है कि दे आर अ लिटिल बिट मेंटली वीक, शायद दे वर नॉट गियर्ड टू टेक दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो मैं चाहती हूँ आप कोई ऐसा गुरु मंत्र अपने युवा पीढ़ी के लिए आज इस फोरम के द्वारा दो कि जिसकी वजह से, अभी तो मैं तो काफी इंस्पायर हो चुकी हूँ आपके साथ बात करते करते, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए खास तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जिसकी वजह से वो इंस्पायर्ड रहे, हार ना माने? युवा पीढ़ी देखिए, ये पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है। आज की तारीख में भारत जो है वो पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पे 3 से 4 पीढ़ियां इस समय रन कर रही हैं। 10 से 15 साल के अंदर में एक पीढ़ी इस दुनिया से 20 साल में लगभग जाएगी, और वो जो बीच वाली पीढ़ी है वो उस स्टेज पर आ जाएगी, और युवा के ऊपर में पूरा दारोमदार होगा। युवा पीढ़ी इनोवेशन का काम करे, इनोवेशन को कमर्शियलाइज करने का काम करे, उसको मार्केट से लिंक करे, और वो अपनी चीजों को बचाने का काम करे। वो युवा पीढ़ी अपने यहाँ की जो चीजें हैं संस्कृति से जुड़ी हुई है वो कमर्शियलाइज उसको करे। फ्रूट है, एग्रीकल्चर है, फल है, स्टार्टअप में इसमें बहुत बड़ा योगदान हो रहा है सरकार का। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत में जा करके युवा जनरेशन कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंट को वो कमर्शियलाइज जरूर करे, मार्केट से लिंक करे, उसके हाथ में पैसा आएगा। और अभी तो इस समय बड़े पैमाने पे जो लोग वापस अपनी जमीन में लौटे हैं, काम जो सीख करके लौटे हैं, ये सरकार से भी आग्रह है और इंडस्ट्री से भी आग्रह, एचपीएमएफ से भी आग्रह है कि वो उन लोगों के स्किल का पूरा उपयोग उन जगहों पे करे, और सारे युवा हैं। तो ये फिर से खड़ा होगा ये पूरा का पूरा सेक्टर, और आने वाले समय में इस देश का युवा फिर से भारत को गुरु का देश बनाएगा। ये गुरु की भूमि फिर से बनेगी ये देश जो है, और इस गुरु के भूमि को हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और एचपीएमएफ और उसमें से जुड़े जो जितने बड़े लोग हैं वो सारी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि एचपीएमएफ युवाओं की टीम है, एचपीएमएफ में यूथ बैठे हुए हैं। तो आने वाले समय में शायद इस समृद्ध के बहुत बड़ा योगदान करेंगे। थैंक यू सर जी। आप तो बिल्कुल ही मतलब नॉलेज का भंडार हो, जितनी बात किया जाए नहीं है। फोरम छोटा, आई वुड से इट्स लाइक अ ट्रेलर टू द एंटायर मूवी टू डॉक्टर रजनीकांत, बट आज के लिए हम इससे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। Before we shut down, I would like to express gratitude to the HPMF Forum, Kaushik sir, Nitin ji, Ravish Jhala ji, all those who always support me and keep on taking me forward with them for the Guru Mantra series. Would like to thank my company, Uniforms Unlimited, and Mr. Zubin Mehta for supporting me in this cause. And this lovely conversation with you, Dr. Rajnikant ji, I think it's really really inspiring. In a nutshell, अगर मुझे बताना हो तो सबसे पहले तो पैशन होना चाहिए हर एक चीज के लिए। जहाँ कहीं भी आप जहाँ भी नींव रखना चाह रहे हो, विदाउट पैशन नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आत्मनिर्भरता was a major thing that came out of your today's talk, okay? And युवा पीढ़ी and education, empowerment and empowerment of women. तो हर एक अगर यदि हर एक आदमी हमारे कंट्री का सोचे कि मैं अगर 5 लेडीज को कुछ इस तरीके से मार्ग दिखाऊं और उनको एम्पावर करूं, तो हो सकता है वो और मल्टीप्लाई करके 10 लेडीज को करे। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, खुद के बारे में ना सोच के सबको एक साथ इकट्ठा लेके चलना है, तब जाके कुछ चेंजेस दिखने हैं। आप संक्षिप्त में आधे सेकंड में इसको कंक्लूड कर सकते हैं। वी स्टिल हैव हाफ अ सेकंड लेफ्ट सर। हम एक तो आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, और हमारी हार्दिक शुभेच्छा आप सभी लोगों के साथ में है। हमारा सिर्फ यही करना है कि हम इस देश की सांस्कृतिक विरासत को
जो समृद्धि है उसको बढ़ाने के लिए हम सभी लोग मिलकर के काम करें, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इस देश की जो बौद्धिक संपदा है वो पूरी दुनिया में जाएगी। उसी बौद्धिक संपदा के नाते हम आर्थिक विकास करेंगे, सामाजिक विकास करेंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे, और जिसका नतीजा यह होगा कि इस देश के जो प्रहरी हैं, जो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, और वो भारत भूमि की रक्षा के लिए और आगे आएंगे। तो हम सभी लोग अलग अलग फोरम से इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए काम करें, यही हमें लगता है कि सबसे बड़ा मंत्र होगा। बिल्कुल। Thanks a ton, sir, for coming over here. Thanks a ton. Have a lovely day. Be safe, sir. Thank you. Thank you.